بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پریویس لیکچر تھا وہ لیبر فورس کے حوالے سے تھا، ان کے کون کون سے مسائل تھے اور پھر ان کا کیا کیا سلوشن تھا، اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ پاکستان میں مزدوروں کی کون سی مشکلات پیش آتی ہیں اور پھر ان کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے افرادی قوت کی منصوبہ بندی۔ ٹھیک ہے، افرادی قوت سے آپ واقف ہی ہیں۔ اب اس کو کس طرح سے پلان کرنا ہے، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کہ ہم کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ اشیاء کو پیدا کر سکیں۔ افرادی قوت کی جو منصوبہ بندی کا تعلق ہے وہ انسانی ذرائع کے بہتر استعمال سے ہی ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جتنا زیادہ آپ اچھے اپنے ذرائع کو بہتر طریقے سے استعمال کرو گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے۔ معاشی ترقی کے عمل میں انسانی ذرائع کسی طور پر مالی ذرائع سے کم نہیں اہمیت رکھتے۔ اب آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ ایک بریلینٹ دماغ ہے تو وہی بات بنے گی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس کو اچھے سے یوٹیلائز اگر آپ کرنا نہیں جانتے ہو تو پھر کیا فائدہ۔ اس لیے آج کل کے جو پلانرز ہوتے ہیں اور پالیسی میکر ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کو انسانی ذرائع کی ترقی کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کہ افرادی قوت کی منصوبہ بندی سے مراد ہے کہ انسانی ذرائع ترقی یافتہ ہوں، جبکہ بعض اوقات اسے محنت کی کمی کو ختم کرنے کے لیے اور فاضل محنت کی کھپت سے افرادی قوت کی طلب و رسد میں توازن قائم کرنے کا تصور لیا جاتا ہے۔ یعنی ہم پڑھ کیا رہے ہیں کہ افرادی قوت مین پاور پلاننگ ہوتی کیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ منصوبہ بندی اس کو کہتے ہیں انسانی ذرائع کی ترقی، یا کہہ سکتے ہو کہ محنت کی کمی کو ختم کرنے اور فاضل محنت جو ہے اس کو لگانے کے سے افرادی قوت کی طلب و رسد میں توازن قائم ہوتا ہے۔ ایک طرف افرادی قوت کی طلب ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ رسد۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ منڈی میں رہتے ہوئے ہمیشہ توازن وہاں قائم ہوتا ہے جہاں طلب اور رسد آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر۔ افرادی قوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی بات ہے۔ افرادی قوت کی منصوبہ بندی کے مفہوم کے بارے میں ماہرین کی رائے کیا ہے؟ مختلف ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی ملک کی افرادی قوت کی مقداری اور توصیفی پیدائش کو افرادی قوت کی منصوبہ بندی کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، پروفیسر لنچ کیا لکھتے ہیں کہ افرادی قوت کی منصوبہ بندی افرادی قوت کے بارے میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پالیسی تیار کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا اور اس کے لیے طریقہ کار ڈیفائن کرنے کا نام ہے، تاکہ جو مناسب افراد ہیں مناسب وقت پر، مناسب مقدار میں، مناسب جگہوں پر کیا کر سکیں؟ روزگار حاصل کر سکیں۔ یعنی ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہو کہ وہ جو بھی ان میں صلاحیت ہے وہ اس کے اکارڈنگ کیا کر سکیں؟ مناسب روزگار حاصل کریں۔ اچھا، اے آر اسمتھ کیا کہتے ہیں کہ افرادی قوت کی جو منصوبہ بندی میں افرادی قوت کی طلب و رسد کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور جو روزگار کی مناسب سطح پر افرادی قوت کی طلب و رسد کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اقدامات کرنے ہیں۔ پروفیسر ہگنس کیا لکھتے ہیں؟ افرادی قوت کی منصوبہ بندی افرادی قوت کی طلب و رسد کو کیا کرتی ہے؟ ڈیفائن کرتی ہے۔ پھر ہے معیشت کے معاشرتی اور معاشی مقاصد کے پیش نظر ان دونوں میں کیا کرتی ہے؟ توازن کو برقرار رکھتی ہے۔ ان تمام تعریفوں سے ہمیں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ افرادی قوت کی جو منصوبہ بندی کا تعلق کیا ہے؟ انسانی ذرائع کو بہتر طور پر کیا کرنا ہے؟ پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ روزگار کی معقول سطح پر ان کی طلب اور رسد میں کیا ہو جائے؟ توازن برقرار رہے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افرادی قوت کی منصوبہ بندی سے روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ملازمت کے مواقع ملتے ہیں اور تسکین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایسی منصوبہ بندی سے انسانی ذرائع کا استعمال اور معیار کیا جاتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے اور روزگار بڑھنے سے آمدنیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں بے روزگاری اور نیم بے روزگاری کا مسئلہ کیا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 30% جو پرپورشن ہے وہ لیبر فورس ہے۔ لیبر فورس آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ افراد ہے جو کام کرنے کے اہل ہوں اور کام کرنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ باقی 70% جو پاپولیشن ہے وہ 30% پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، جن میں بوڑھے، بچے، ڈیپینڈنٹ لوگ آئیں گے، اپاہج اور عورتیں آ گئی جو کہ ارننگ پوائنٹ میں نہیں آ رہی بلکہ وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود جو اس 30% میں سے بھی اس کی ایک چوتھائی 7-8% کہہ لیں اس میں سے بھی کیا ہے؟ حصہ کیا ہے؟ بے روزگار ہے۔ اور جو آپ کی زرعی شعبے میں ہے 20% کیا ہے؟ مخفی بے روزگاری ہے۔
तरह जो नाकमाऊ आबादी का बोझ कम करने वाले अफराद पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है और फिर लेबर फोर्स भी क्या है, कम। पाकिस्तान में इस मसले के अहम असबाब कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है, अफरात आबादी। पाकिस्तान की जो आबादी है 207.77 मिलियन अफराद से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि वसाइल के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। नीज़ आबादी की शरह अफजाइश 2.40% है, जो कि एशिया में क्या है, हाईएस्ट है। इस तरह क्या है, हर साल काम करने वाले अफराद की तादाद में क्या हो रहा है, लाखों का इजाफा, जिसकी मुनासिब खपत नहीं हो रही, तो इससे क्या हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी कि जो आबादी का इस कदर तेज़ी से बढ़ना बहुत सारे मसाइल को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल के पीछे जो एक बुनियादी वजह है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो कि इतना हाई है, क्योंकि हमारे मुल्क के वसाइल उस लिहाज से ग्रो नहीं करते जितनी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। फिर है सनती पसमानदगी। पाकिस्तान सनती लिहाज से पसमानदा मुल्क है, लिहाजा मुल्क में कम सनतों की वजह से भी क्या हो जाता है, रोज़गार के मौके नहीं मिलते। हमने ये बात की थी, पाकिस्तान बेसिकली एग्रेरियन मुल्क है और इसकी आबादी का जो है उनमें से 70% आबादी क्या है, ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है। ये जो भी बात है 60 to 70%। तो सनती यानी हमारा सनती शोबा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे पाए। फिर है मौसमी बेरोज़गारी। बाज़ औक़ात कारखाने सिर्फ मौसमी होते हैं, जैसे अब मौसम पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मौसम पे डिपेंड होते हैं। जैसे आपको गर्मियों में तो बर्फ़ की ज़रूरत होगी, सर्दियों में तो उसका कोई काम नहीं है। आइसक्रीम हो गया, सोडा वाटर की फैक्ट्रियाँ कहाँ किस वक्त काम करेंगी, मौसम गर्मा में। जबकि चीनी के कारखाने, चावल छिड़ने और रुई बेलने के कारखाने मौसम सरमा में। यानी कोई कोई सीजनल पॉइंट होता है कि जब उनसे मुंसलिक जितने भी लोग होंगे फिर उस लिहाज से वो बेरोज़गारी फिर बनेगी, क्योंकि जब सीज़न ख़त्म होता है तो वो क्या हो जाते हैं, कारखाने बंद कर देते हैं। सरमाए की किल्लत। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसमें फ़ीकस आमदनी कलील होने की वजह से बचतों का तनासब भी क्या है, कम है। लिहाजा सरमाया कारी के लिए कम रकूम दस्तयाब होती हैं, जिससे रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलते नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद है फ़नी और तकनीकी तालीम की कमी। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे क्या है, हुनरमंद अफराद की कमी है। लोग फ़नी और तकनीकी लिहाज से तरबियत याफ्ता नहीं है। नीज़ जहालत और ख़वानदगी की वजह से आम मज़दूरों का तनासब तो बढ़ रहा है, जबकि हुनरमंद और जो तरबियत याफ्ता अफराद का तनासब क्या है, कम है। इस तरह मजमूई तौर पर क्या है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। फिर है सियासी अदम इस्तेहकाम। रोज़गार की फराहमी के लिए जो सियासी फ़िज़ा का खुशगवार होना ज़रूरी है, ताकि बैरूनी क्या है, सरमायाकार आके हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें। लोगों का एतमाद जीतने के लिए सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी भी सियासी लिहाज से मुस्तहकम नहीं हो सका। ठीक है। मुल्क की 66 साल तारीख हो गई है ना। निफ से ज़्यादा अरसा तो हमें पता है मार्शल लॉ लगा रहा, बाकी अदवार में सियासी जमहूरी अमल आता रहा, रुकावटें डाली गई। लिहाजा जो सनत साजी और सरमायाकारी का अमल है वो क्या रहा, सुस्त। जब ये अमल सुस्त रहेंगे तो रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे। खुद कार मशीनों का इस्तेमाल। जदीदियत की तरफ सफ़र की वजह से खुद कार मशीनों का इस्तेमाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लिहाजा मेहनत की तलब कम हो रही है, क्योंकि मशीनरी पे ज़्यादा काम हो रहा है। अब हाथों से तो काम करने का ट्रेंड नहीं है, तो उस लिहाज से मज़दूरों की जो तलब है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, जिससे बेरोज़गारी बढ़ रही है। गैर ममालिक से अफरादी क़ुव्वत की वापसी। जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जब माशी हालात बदलते हैं तो अक्सर ममालिक में से जो हमारे अफराद वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कुछ हालात अगर अप डाउन हो जाए, उन्हें भी वहाँ से क्या करना पड़ता है, वापस अपने मुल्क मूव करना पड़ता है। जैसे कुवैत, इराक़, अमेरिका, इराक़ जंग की वजह से क्या खिलजी ममालिक और 9/11 का जो वाक़या, उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के रवैयों में तब्दीली आई। इससे ज़ाहिर बात है हमारे काफ़ी लोगों को वापस पाकिस्तान आना पड़ा, और ज़ाहिर बात है आते साथ तो वो लोग सेटल नहीं होते, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। फिर है बात करते हैं हम ज़रूरी शोबे पे इन्हिसार। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रूरी मुल्क है और ये ज़्यादातर इन्हिसार किस पे करता है, ज़रूरी शोबे पे, और हमारी जो ज़राअत है वो भी क्या है, पसमानदा है, और आबादी का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो इसी शोबे से जुड़ा हुआ है। ज़रूरी शोबे में क्या है, अफरादी क़ुव्वत की खपत के मौके कम है। ठीक है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ तौर पे क्या है, बेरोज़गारी पाई जाती है।
बेरोज़गारी और नीम बेरोज़गारी को अब क्योर कैसे करना है? सबसे पहले पाकिस्तान में बेरोज़गारी और नीम बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम ये इक़दामात कर सकते हैं। आबादी की मौसर मनसूबाबंदी। मुल्क में बेरोज़गारी की वजह क्या है? अफराती आबादी है, तो हमें फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना चाहिए ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया जा सके, तो ही बेरोज़गारी कंट्रोल होगी। फिर है सनअती तरक्की। इस चीज़ की भी अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान को सनअती तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और जो घरेलू पैमाने की सनतें इनको भी प्रमोट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। सरमाया साजी की रफ़्तार में इजाफ़ा। मुल्क में बचतों के फ़रोग़ के लिए तश्कील सरमाया की रफ़्तार को तेज़ करना चाहिए ताकि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। मौसमी सनतों का मुश्तरका क़याम। और जो सनतें या मुख्तलिफ़ मौसमों में चलती हैं, इनके कारखाने मुश्तरका लगाए जाएँ, यानी इस तरह का सेटअप करना चाहिए कि दोनों मौसम में वो चीज़ चलती रहे। यानी कि इससे ये मुराद है कि कारखानों का सेटअप ये होना चाहिए कि बेरोज़गारी कम होनी चाहिए, कि जब एक मौसम की चीज़ नहीं है तो कोई दूसरा सेटअप होना चाहिए अल्टरनेट। ठीक है, तो इस तरह क्या होती है, बेरोज़गारी कम हो जाएगी। जैसे राइस और आइस फैक्ट्रियाँ वगैरह, यानी दो मल्टीपल टास्किंग करती हूँ। फ़नी और तकनीकी महारत। मुल्क में जो फ़नी और तकनीकी तालीम है, इसका मुनासिब बंदोबस्त करना चाहिए ताकि लोगों को हुनर मिले। जब उनके हाथ में हुनर होगा तो उनके लिए बेहतर रोज़गार के मौके भी होंगे। फिर क्या है, रोज़गार के मौक़ों की फराहमी। मुल्क में रोज़गार के दफातर का क़याम करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए ताकि पता लगे। वहाँ बहुत सारे लोग इस वजह से भी बेरोज़गार रह जाते हैं कि उनको जॉब्स आने का या कहाँ पे उनकी ज़रूरत है उनको पता नहीं चलता। जब ये इग्नोरेंट रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। मौसर तलब में इजाफ़ा। फिर है, मौसर तलब में इजाफ़ा करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो ख़ुद भी सरमायाकारी करे और निजी शोबा को भी सरमायाकारी के लिए कहे ताकि रोज़गार के मौके बढ़ सकें। नए प्रोजेक्टों की मौसर मनसूबाबंदी। मेहनत की खपत के लिए नए प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी सोच समझ कर मुल्की और मकामी हालात के मुताबिक करने की क्या है, अशद ज़रूरत है ताकि बेहतरीन नताइज हासिल किए जाएँ, ताकि वसाइल ज़ाया ना हो और कारकुनों को इनकी इस्तात के मुताबिक काम मिले। कि जो भी अपने नए प्रोजेक्ट लगाने हैं, हमारे अक्सर ये भी होता है कि प्रोजेक्ट जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा तातुल या डिले हो रहे होते हैं, देर का शिकार हो रहे होते हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो भी प्रोजेक्ट लगाने हैं प्रॉपर प्लानिंग से लगा दिया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, रोज़गार। निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई। जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि रोज़गार के मौके पैदा हों। इस ज़िम्मन में जो नए और पुराने सरमायाकारों को आप टैक्स में छूट दें ताकि वो सरमायाकारी करें। नीज़ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अमन अमान भी क्या करता है, सरमायाकारी बढ़ाता है, रोज़गार के इजाफा भी बनता है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी मुफीद साबित हो सकती है। खुद रोज़गार स्कीमों का इजरा। मुनासिब रहनुमाई, माली इमदाद, बैंकों से कर्ज़ों के हसूल में सहूलत पैदा करके छोटी सतह पर अफरादी क़ुव्वत को रोज़गार मुहैया किया जा सकता है। मसलन ऑटो रिक्शा, टैक्सी कार, छोटा कारोबार, वर्कशॉपों का क़याम, पोल्ट्री फार्म वगैरह। ठीक है, तो ये थे हमारी पॉइंट्स कि हम किस तरह से बेरोज़गारी का और नीम बेरोज़गारी का इलाज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 9 ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ चंद एक बच्चों की अटेंडेंस के अलावा कोई कमेंट वहाँ पढ़ने को नहीं मिलता। तो काइंडली अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन करें। वैसे 15 से जो कॉलेजेस हैं वो ओपन तो होने लगे हैं। लेट्स सी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि SOPs को फॉलो करें, जितनी एहतियात करें उतना ही अच्छा है। वैसे तो कोरोना की जो सूरत हाल है वो इस टाइम कंट्रोल में ही है, तो
تو کائنڈلی اپنا جو بھی پالیسی یا جو بھی سیٹ اپ بنے گا پھر آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ کلاسز کا جو بھی سیٹ اپ ہوا. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.